हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमीक और ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚੇਂजेस ਵਿਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ increases with increase of temperature। क्यों increase करती है? क्योंकि semiconductors ਦੀ जो conductivity है वो depend करती है number of holes ਤੇ number of electrons। मतलब number of electrons ਤੇ number of holes किन्ने produce होए है ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ depend करती है semiconductor ਦੀ conductivity। ਅਸੀਂ already ਪढ़ ਚੁੱਕੇ हैं कि जो electron ਤੇ hole pairs ਜਿਹੜੇ produce ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ with increase in temperature। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ concentration of hole ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗਿਵ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ and the number of conduction electrons in an intrinsic semiconductor। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स is equal to number of holes या concentration of electrons is equal to concentration of holes। therefore ratio जो सानू पूछी गई है number of holes and the number of conduction electrons ये equal है, so ratio would be 1:1 क्योंकि intrinsic semiconductor ਦੇ ਵਿੱਚ number of electrons ਤੇ number of holes equal ਹੁੰਦੇ ਹੈ। next question है, which biasing will make the resistance of PN junction high। कि केड़ी biasing होवे PN junction ते कि ओदी resistance जो है बहुत high होवे। असी पढ़े हैं PN junction च दो तरह दी biasing, एक हुंदी है forward biasing ते एक सीगी reverse biasing। दो तरह दी biasing सी, forward bias ते दूसरी पढ़ी सी reverse biasing। फिर असी ये देखा सी कि फॉरवर्ड बायसिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ p ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ n ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ n ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ p ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, रेजिस्टेंस करके ही करंट ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ नहीं कर पा रहा है। तो साडा क्वेश्चन ये है कि which biasing will make the resistance of PN junction high। तो आंसर है रिवर्स बायसिंग, क्योंकि रिवर्स बायसिंग ਦੇ ਵਿੱਚ करंट बहुत थोड़ा फ्लो कर रहा है। थोड़ा फ्लो ਦਾ मतलब है कि ਉਹਦੇ ਤੇ रेजिस्टेंस हाई है। सो द आंसर की है रिवर्स बायसिंग। ਹੁਣ क्वेश्चन है कि in the given diagram is the diode D फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड। असी चेक करना है कि जी ये वाली डायोड है कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड है। फिर सानू दोबारा एक बार असी अपने कॉन्सैप्ट रिवाइज करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल p टाइप नाल कनैक्टेड है तो नैगेटिव टर्मिनल n टाइप नाल कनैक्टेड है। तो रिवर्स बायसिंग का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का n टाइप नाल कनैक्टेड है तो नैगेटिव टर्मिनल बैटरी का p टाइप नाल कनैक्टेड है। हुण इस डायोड दे विच जो आ साइड है ये रिप्रेजेंट करती है p ते ये रिप्रेजेंट करती है n। हुण आपां देखते हैं कि इन्हां दे उपर की पोटेंशियल लग्या होया है। ये p टाइप वाला कनैक्टेड है -10 वोल्ट दे नाल
ਤੇ n ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ 0 ਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਵੋਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, -10 ਵੋਲਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 0 ਵੋਲਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -10 ਤੇ 0 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ 0 ਵੋਲਟ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ -10 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 0 ਵੋਲਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, n ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ n ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ p ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 0 ਵੋਲਟ ਹੈ -10 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ 0 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, n ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੈ। डायोड D जो है रिवर्स बायस्ड है। What is an ideal diode? And draw the output waveform across the load resistance R if the input waveform is shown in the figure। इस उन्होंने क्वेश्चन दे विच input waveform दिती हुई है और इस सर्किट दे विच असी R दे across आउटपुट वेवफॉर्म दसनी है। सब तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट इज एन आइडियल डायोड। आइडियल डायोड ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਇਓਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਇਓਡ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੈ ਡਰਾ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਵਫਾਰਮ across the load resistance R if the input waveform is given। ਇਹ ਹੈ input waveform ਤੇ ਅਸੀਂ R ਦੇ across output waveform ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਦੇ across ਇੱਥੇ input waveform ਲੱਗਣੀ ਹੈ। जब तो ये है 0 पोटेंशियल तो ये हो गया 6 वोल्ट, मतलब ये पॉजिटिव है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵੇਵਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਓਡ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀ 0 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੇਵਫਾਰਮ ਦਾ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੇਵਫਾਰਮ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਇਓਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 0 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰਨ ਦੇਗੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਨ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਓਡ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ। ਜਦ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 0। ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੇ लिए 0 वोल्टेज आएगी। In the following diagrams indicate which of the diodes are forward biased and which are reverse biased। मतलब कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਰਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग के केस दे विच जो हाई पोटेंशियल है या पॉजिटिव पार्ट है बैटरी का
ਉਹ ਪੀ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਐਨ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਐਨ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਪੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ +5 ਵੋਲਟ ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ +7 ਵੋਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? +7 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ +5 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। 7 ਵੋਲਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ 5 ਵੋਲਟ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ, ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ ਐਨ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਪੀ ਟਾਈਪ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 0 ਵੋਲਟ। ਇਹ ਹੈ ਐਨ ਟਾਈਪ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ +2 ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 2 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਹੈ ਵਿਦ ਐਸ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ 0 ਵੋਲਟ। 2 ਵੋਲਟ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? -10 ਵੋਲਟ। ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? 0। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ -10 ਵੋਲਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਓਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ -12 ਵੋਲਟ ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ -5 ਵੋਲਟ। -5 ਵੋਲਟ ਤੇ -10 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ? -5 ਵੋਲਟ ਵੱਡੀ ਹੈ, -12 ਵੋਲਟ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਐਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Zener diodes have higher dopant densities as compared to ordinary PN junction diodes. How does it affect the width of the depletion layer ਤੇ junction field? क्वेश्चन है कि Zener diodes ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਰਡੀਨਰੀ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨਰੀ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैं उस दिन भी दसिया सी जो आप Zener डायोड डिस्कस किया सी कि जो हाई डोपिंग होंगी है तो जी डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब कि डिप्लीशन लेयर विड्थ जी है डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। हाई डोपिंग करके जी डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो छोटी हो जाएगी। फिर जंक्शन फील्ड के उपर की असर पेगा? इलैक्ट्रिक फील्ड होंगी है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जिहदे क्रॉस पोटेंशियल लग्या। हुण जदों Zener डायोड आपां डिस्कस कीती सी आ पी टाइप ते एन टाइप है और हाई डोपिंग डेंसिटी करके जिहड़ी आ डिप्लीशन लेयर विड्थ है ये छोटी हो गई है। लेकिन इहदे उपर जिहड़ा पोटेंशियल है ये काफ़ी जिन्ना नॉर्मल बनना चाहिए कि ज़्यादा चार्ज कैरियर्स की फ्लो हो रहा है क्योंकि डोपिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इधर उधर एक दूसरे पासे फ्लो करेंगे तो जो पोटेंशियल बैरियर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। पोटेंशियल बैरियर V ज़्यादा है, W छोटा है, ये तो इसे W भी लिख सकते हैं। W छोटा है इसका मतलब E की होएगा वड्डा होएगा क्योंकि A वड्डा है तो A छोटा है इसका मतलब E की होएगा वड्डा होएगा। इसका मतलब जंक्शन फील्ड जी है हाई होंगी है। Zener डायोड दे विच जंक्शन फील्ड हाई है तो डिप्लीशन लेयर विड्थ छोटी होंगी है। हुण क्वेश्चन है कार्बन एंड सिलिकॉन are known to have similar lattice structures. Both have equal number of valence electrons but their electrical conductivities are different. Explain.
कि कार्बन ते सिलिकन दे विच दोनों दे सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन है। कार्बन का अगर असी एटॉमिक नंबर देखिए वो 6 है, तो सिलिकन का एटॉमिक नंबर देखिए वो 14 है। इन्हां दी स्कीम बनाते हैं, फिर सानू पता चलेगा कि इहदे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स किन्ने हैं। 1s2 2s2 2p2 1 2 3 4 5 6 कि सैकेंड ऑर्बिट दे विच इहदा आउटर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 इलैक्ट्रॉन्स है। मतलब कार्बन दे विच किन्ने है 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। इसी तरह सिलिकन दी आपां उस दिन भी पढ़ी सी की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 6 7 8 9 10 14। सो ਇਹਦੇ n इज इक्वल टू थर्ड, ਇਹਦਾ ऑर्बिट n इज इक्वल टू थर्ड आउटर ऑर्बिट है, ਤੇ ਇਹਦਾ आउटर ऑर्बिट ਕਿਹੜਾ ਹੈ n इज इक्वल टू 2, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन ये है कि दोनों दे इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स है, पर इन्हां दी कंडक्टिविटीज ਜਿਹੜੀ है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है कि जो कार्बन है वो इंसुलेटर है, ਇਹਦਾ मतलब कि वो कंडक्ट नहीं करता है, कार्बन इंसुलेटर है, जबकि ਜਿਹੜਾ सिलिकन है वो सैमी कंडक्टर है। जबकि दोनों दे विच सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो लैटिस स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम है। लैटिस स्ट्रक्चर सेम होने तो मतलब ये है कि आपां आ वाली कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी सी सिलिकन दे विच कि वो अपने वैलेंस इलैक्ट्रॉन बाकी दे दूसरे अपने आले दुआले वाले सिलिकन एटम्स दे नाल शेयर करता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ करेगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ करेगा। कि कार्बन दी भी लैटिस स्ट्रक्चर यही है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स है, सिलिकन 'ਚ भी 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स है। फिर इन्हां दी कंडक्टिविटीज डिफरेंट क्यों है, ਇਹਦਾ आंसर है इस स्कीम दे विच। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ देखा कि जो कार्बन दे वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स है वो n इज इक्वल टू सैकेंड ऑर्बिट दे विच है, ਉਹਦੀ आउटर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 है, जबकि सिलिकन दी n इज इक्वल टू 3 आउटर ऑर्बिट है। ये आउटर ऑर्बिट होने का मतलब ये है कि जिवें आ अगर असी बना रहे हैं न्यूक्लियस है, n इज इक्वल टू 1 a है, n इज इक्वल टू 2 a होगी, n इज इक्वल टू 3 a होगी, a होगी n इज इक्वल टू 1, a हुई n इज इक्वल टू 2, तो a हुई n इज इक्वल टू 3। हुण अगर कि आपस देखे ये तो हो गया कि आउटर ऑर्बिट्स किहड़ियां डिफरेंट है इन्हां दोनों दियां, पर हुण इहदे च कंडक्टिविटी किवें पिक्चर च आंदी है। सानू पता है कि कंडक्टिविटी सैमी कंडक्टर ने तां ही कंडक्ट करना है जो उहदे कोल कुछ फ्री इलैक्ट्रॉन्स होल पेयर्स होणगे। फ्री इलैक्ट्रॉन होल पेयर किवें बनदे है कि कोई थर्मल एनर्जी आंदी है, कोई इहदे चों बॉन्ड टुटदा है, ते इलैक्ट्रॉन फ्री हो जांदा है, ते इत्थे वैकेंसी दी होल क्रिएट हो जाती है, तो इलैक्ट्रॉन इत्थे चला गया। मतलब बॉन्ड इलैक्ट्रॉन दा n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट चों निकलना जरूरी है। जिहड़ा मैं स्ट्रक्चर बनाया, जिहड़े आदे 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन एक सिलिकन दे शो किए गए हैं, वो इस n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट दे है, तो थर्मल एनर्जी दे आने दे नाल n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट चों इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह जे कार्बन ने कंडक्ट करना होवे तो उन्होंने n इज इक्वल टू सैकेंड ऑर्बिट दे विचों अपने इलैक्ट्रॉन्स कढने पैणगे। और सानू केमिस्ट्री तो ये पता है कि n इज इक्वल टू सैकेंड ऑर्बिट दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स होणगे वो न्यूक्लियस दे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे अंदर होणगे। इलैक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड है। इसका मतलब कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा बन के रखे हुए हैं, ज़्यादा जोर की किसी चीज़ को फड़ के रखा हुआ है इस न्यूक्लियस ने। सो n इज इक्वल टू 2 वाले जो इलैक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे अंडर n इज इक्वल न्यूक्लियस दे, इसलिए जो उन्होंने उहदे चों बाहर कढ़ना तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पेगी कि हुण इत्थों टुटन ते फ्री होण ते कुछ इलैक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होण। जबकि सिलिकन दे n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट दे विच है, तो ऑलरेडी n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट दे विच कुछ इलैक्ट्रॉन्स है, n इक्वल्स टू 1 दे कुछ इलैक्ट्रॉन्स है। हुण n इज इक्वल टू 3 वाले जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने इन्ना जिहड़ी अट्रैक्शन है न्यूक्लियस तो फील नहीं हो रही है, इस करके वो जिहड़े है वो थोड़ी रूम टैंपरेचर ते जिहड़ी एनर्जी हुंदी है उहदे नाल ही फ्री हो जाते हैं, तो इलैक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है, तो बनन ते वो सैमी कंडक्टर्स बिहेव करते हैं। जो कार्बन है वो इंसुलेटर बिहेव करता है क्योंकि वो इलैक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 2 चों निकलने हैं, जो कि इनर मोस्ट शैल है।
जो सैमीकंडक्टर है ਉਹਦੇ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 जो निकलने हैं, जो आउटर शेल है, आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन निकलने ईजी है, जबकि इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन निकलने ईजी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलने तो कार्बन की कंडक्टिविटी लो होनी है तो सैमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होएगी। हुण क्वेश्चन है, हाउ इज अ सैंपल ऑफ n टाइप सैमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दो इट हैज एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। क्वेश्चन है कि एन टाइप सैमीकंडक्टर का सैंपल असी क्यों कह रहे हैं कि इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है जबकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ एन टाइप पढ़िया सी ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आर वेरी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। इलैक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज ਹੁੰਦੇ ਹੈ, होल्स पॉजिटिवली चार्ज है। फिर असी क्यों जब ये एन टाइप दे विच इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैं उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिवली चार्ज जिहड़े चार्ज कैरियर्स है उन्हां दी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर असी क्यों कह रहे हैं कि जिहड़ा सैंपल है वो न्यूट्रल है। इसदा रीज़न की है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਸਿਲੀਕਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, लेट से आप कोई आर्सेनिक का एटम पाया जो कि पेंटावेलेंट है, इधर सिलिकन के एटम सीगे जिन्हां दे नाल उन्हें अपने इलैक्ट्रॉन्स शेयर कीते सी। मैं पूरी डायग्राम नहीं बना रही है क्योंकि आप सिर्फ समझना है। हुण आर्सेनिक दे आर्सेनिक दे कोल है 5 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स, ये हो गए 1 2 3 4 5 ਉਹਦੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਇੱਕ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ 4 ਸਿਲੀਕਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਸਿਲੀਕਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੌਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। हाँ भी बॉन्ड च है, ए भी बॉन्ड च है, ए भी बॉन्ड च है, ए भी बॉन्ड च है, ये तो बॉन्डिंग च है। लेकिन आ वाला जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग च नहीं है। आपां क्या सी कि आर्सेनिक एन टाइप आर्सेनिक ऐड करके सिलिकन क्रिस्टल एन टाइप बन जाएगा। कदों? क्योंकि जिहड़ी इहदी आ एक्सेस वाला इलैक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग च है नहीं, थोड़ी जी एनर्जी ते ही इहने इहदे तो टुट जाना है, आर्सेनिक तो इहने फ्री हो जाना है, ये फ्री होके इत्थे चला गया। हुण ये इलैक्ट्रॉन फ्री है तो कंडक्टिविटी विच पार्टिसिपेट करेगा। हाले मैं क्या सी कि इलैक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन जी थर्मल एनर्जी करके होनी है वो तो हाले होनी ही है, लेकिन उस तो इलावा भी आर्सेनिक ने एक इलैक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। इस करके असी क्या सी कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स दे नालों। हुण देखिए कि उन्होंने क्या किया, ठीक है कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स नालों ज़्यादा है, इत्थों तक तो गल समझ आ गई। लेकिन ये इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों किया है इनू कि ये तो नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा ही है। न्यूट्रल इसलिए है कि जिहड़ा आर्सेनिक दा एटम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ अगर ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊਟਰਲ। ਜੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਐਟਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ चला गया है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। जद भी पूरे क्रिस्टल दे विच किसी आर्सेनिक एटम ने अपना एक इलैक्ट्रॉन दे देना, डोनेट कर देना, ਉਹਦਾ टुट जाना है। इलैक्ट्रॉन ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ देता ਤੇ ਆਪ ਉਹ पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आर्सेनिक ने देने हैं, हर आर्सेनिक ने एक इलैक्ट्रॉन देना है, तो एक 1 इलैक्ट्रॉन मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, तो आर्सेनिक के कोल खुद 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। इस करके एन टाइप सैमीकंडक्टर चाहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होल्स नालों ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी न्यूट्रल रहता है। क्यों? क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ अपना एक इलैक्ट्रॉन देना है उन्हें खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाना है। तो जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन गए, जिन्ना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ਹੁਣ क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टर द concentration of electrons is 8 into 10 raised to power 3 per centimeter cube and that of holes is 5 into 10 raised to power 2 per centimeter cube. Is it a p type or an n type semiconductor? क्वेश्चन जो है सानू कॉन्सेंट्रेशन इलैक्ट्रॉन्स ते होल्स दी दित्ती हुई है ते असीं दसना है कि ये वाला सैमीकंडक्टर दा सैंपल
पी टाइप है या एन टाइप है? गिवन की है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। इस पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि पर सेंटीमीटर क्यूब के सैंपल दे विच 8 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स है एक सेंटीमीटर क्यूब दे पार्ट दे विच। ये हुंदा है कॉन्सेंट्रेशन। होल्स कितनी है? 5 इंटू 10⁻² पर सेंटीमीटर क्यूब। हुण इन्हां चों नंबर किहड़ा ज़्यादा है, इलैक्ट्रॉन्स दा कि होल्स दा? एदी पावर है 10⁻³ ते एदी पावर है 10⁻²। ਇਹਦਾ मतलब है कि होल्स जिहड़े थोड़े है ते इलैक्ट्रॉन ज़्यादा है। ਇਹਦਾ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। ਤੇ जे इलैक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन होल्स तो ज़्यादा होवे ਤਾਂ सैमीकंडक्टर ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ एन टाइप सैमीकंडक्टर, क्योंकि एन टाइप सैमीकंडक्टर दे विच इलैक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन होल्स की कॉन्सेंट्रेशन नालों ज़्यादा होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब कि जिहड़ा ये वाला सैमीकंडक्टर है वो एन टाइप है। सैमीकंडक्टर किहड़ा है? एन टाइप, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ इलैक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन होल्स की कॉन्सेंट्रेशन नालों ज़्यादा है। हुण क्वेश्चन है अ photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.8 electron volt. Can it detect wavelength of 6000 nanometer? Justify. क्वेश्चन है कि एक फोटोडायोड बनाई है सैमीकंडक्टर तो जिसका बैंड गैप 2.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट का है कि वो वाला फोटोडायोड हुण 6000 नैनोमीटर की जिहड़ी वेवलेंथ है उन्होंने डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। कल आपां कीता सी फोटोडायोड, ते फोटोडायोड दे विच की हुंदा है कि वो रिवर्स बायसिंग दे विच ऑपरेट करता है। ये उहदी पी टाइप है, एन टाइप है, ते इन्नी उहदे ते ट्रांसपेरेंट विंडो जंक्शन दे क्रॉस ट्रांसपेरेंट विंडो दित्ती हुंदी है ताकि बाहरों जिहड़े फोटोन्स है इहदे ते आके गिर सकन। डिटेक्शन किवें हुंदी है कि जिहड़ी ये फोटोडायोड है रिवर्स बायसिंग दे विच हुंदी है। फोटोडायोड जिहड़ी ऑपरेट करदी है रिवर्स बायसिंग दे विच ऑपरेट करदी है। डिटेक्शन तां होएगी जे इहदे चों हुण करंट फ्लो करेगा। कोई भी सिग्नल जदों इहदे ते आके गिरदा है तां करंट फ्लो करदा है, तां इहदा मतलब कि फोटो सानू पता लग जाता है भी कोई सिग्नल इहदे उपर आके गिरिया फोटोडायोड दे उपर। डिटेक्ट क्यों करता है? क्योंकि रिवर्स बायसिंग दे विच वैसे अगर कोई ये ऊपर सिग्नल ना लगे होवे, सिंपल सर्किट ही होवे तो बहुत थोड़ी करंट उहदे चों फ्लो करता है। जबकि जो उहदे ते आके कोई सिग्नल गिरदा है, कोई फोटोन्स इहदे उपर आके गिरदे हैं जंक्शन दे उपर, तां होर चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हुंदे हैं ते करंट फ्लो करता है ते असीं कह रहे हैं कि साडे कोल सिग्नल डिटेक्ट हो गया। क्वेश्चन दे विच उन्होंने क्या है कि असी जिहड़ा फोटोडायोड बनाई गई है किसी सैमीकंडक्टर मटीरियल तो जिहदा बैंड गैप है 2.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो पूछ रहे हैं कि 6000 नैनोमीटर की जो कोई वेवलेंथ आके इहदे उपर गिरदी है कि ये फोटोडायोड डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हुण जे कोई भी जे ने डिटेक्शन करनी है फोटोडायोड ने तो उहदे लिए सब तो पहले जरूरी गल है कि चार्ज कैरियर्स जिहड़े है वो प्रोड्यूस होने चाहिए है। चार्ज कैरियर्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए है तां ही करंट फ्लो करेगा। जे इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होंगे है इस जंक्शन के उपर जो आके गिरती है तां ही करंट फ्लो करता है। तो असीं कह रहे हैं कि कोई सिग्नल डिटेक्ट होया है। तो सिग्नल दे डिटेक्ट करने लिए जरूरी है कि जे इहदे उपर मान लो 6000 नैनोमीटर की वेवलेंथ हुण इहदे उपर आके गिर रही है तो जे उन्हें डिटेक्ट होना है तो जरूरी है भी वो प्रोड्यूस करे इहदे विच करंट, तो चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस करे। चार्ज कैरियर्स किवें प्रोड्यूस होणगे? सानूं पता है कि आ हुंदा किसी भी मटीरियल का वैलेंस बैंड है ते कंडक्शन बैंड है। ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये इन्हां दे विच है एनर्जी गैप। चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस तां होने हैं जे जिहड़े वैलेंस बैंड दे विच इलैक्ट्रॉन है उन्हां नूं ईजी दे इक्विवेलेंट एनर्जी मिल जाए ते वो कंडक्शन बैंड दे विच चले जाण। वो एनर्जी फोटोडायोड दे विच कौन दे रहा है? ये जिहड़े फोटोन्स बाहरों आके गिरते पे है, ये बाहरों आके फोटोन्स वैलेंस बैंड के उपर गिरते हैं। ये वैलेंस बैंड जो इलैक्ट्रॉन्स नूं इनफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो ईजी बैंड एनर्जी क्रॉस करके कंडक्शन बैंड दे विच चले जाण। हुण देखते हैं कि 6000 नैनोमीटर के जिहड़े फोटोन्स आते हैं उन्हां कोल एनर्जी 2.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं है। ये जिहड़ा साडा मटीरियल है उहदी बैंड गैप एनर्जी 2.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है।
ਤੇ ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਾਲੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਫੋਟੋਨਸ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2.8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ ਲਈ hc/λ। h ਹੁੰਦਾ ਹੈ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, into 10⁻34। c ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3 × 10⁸। ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 6000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। 6000 ਤੇ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ SI ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 10⁻⁹। ਇਹ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬਣੇਗੀ 3.31 × 10⁻⁻19 ਜਾਊਲਸ। ਇਹ ਜਾਊਲਸ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1.602 × 10⁻⁻19 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ એનર્ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 2.06 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 6000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈ 2.06 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2.8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ 2.06 ਦੀ એનર્ਜੀ 2.8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੈਨ ਇਟ ਡਿਟੈਕਟ ਅ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ 6000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ? ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈਜ਼ equal electron and hole concentration of 6 × 10⁸ per meter cube. On doping with certain impurity, electron concentration increases to 8 × 10⁻12 per meter cube. Identify the new semiconductor obtained after doping. The second है calculate the new hole concentration. Questions की क्या गया है कि पहले semiconductor दी ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 6 × 10⁸ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ 8 × 10⁻12 ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ N ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਿ P ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 6 × 10⁸ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 8 × 10⁻12। ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 × 10⁻12। ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡਿਡ ਹੈ ਉਹ N ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ N ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਸੋ ਡੋਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ N ਟਾਈਪ, ਕਿਉਂਕਿ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स दी जी इंट्रिंसिक वाली कॉन्सेंट्रेशन है वो तो ज्यादा है। सो सैमीकंडक्टर केड़ा बनया N टाइप। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई दी होल एंडी कैलकुलेट द न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन कि हुण होल्स दी की कॉन्सेंट्रेशन है कि NH फाइनल की है
इस क्वेश्चन ते बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है कि सब तो बच्चे ये सोच लेंदे है कि ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਟਮ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹੋਲਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਸ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ तो वो कह लेंगे कि होल्स की कॉन्सेंट्रेशन फिर 6 × 10⁻8 ही होएगी जबकि ये गलत आंसर है होल्स की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है घटती क्यों है मान लो पहले ये इलैक्ट्रॉन ते होल पेयर है ये इलैक्ट्रॉन है ते होल है इदा ही ऑलरेडी इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर दे विच बहुत सारे इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स होणगे हुण जदों एक्सट्रा इलैक्ट्रॉन आ गए उहदे विच तां कुछ होल्स जिहड़ियां वो डिस्ट्रॉय हो जानियां वो ऑक्यूपाई हो जानियां उन्हां नूं भी इलैक्ट्रॉन ने कैप्चर कर लेना रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इलैक्ट्रॉन ते होल दा क्योंकि उहदे विच होल्स तां इन्नियां ज़्यादा नहीं है लेकिन इलैक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है तां इलैक्ट्रॉन होल्स दी रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी ਇਹਦਾ मतलब कुछ होल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं ਤਾਂ नंबर ऑफ होल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ इंट्रिंसिक ਦੇ कंपैरिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਟ ਜਾਣਗੇ कि ਇਹ कैलकुलेट करना है कि ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ एक रिलेशन है Ne NH Ni स्क्वायर ये वाला रिलेशन दी डेरिवेशन कोई नहीं है पर इस रिलेशन नू मैमोराइज करना है ये रिलेशन है मास एक्शन लॉ इनू बोलते हैं ये इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर लिए भी वैलिड है ये एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर लिए भी वैलिड है Ni की है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स NH की है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ते Ni की है कॉन्सेंट्रेशन इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर दी कितनी है कोई हुण इंट्रिंसिकली किवें वैलिड है चेक कर लैंदे आ कि इंट्रिंसिक दे विच Ne ते NH दोनों इक्वल हुंदे आ ते उन्हां दी वैल्यू की होएगी Ne = NH इंट्रिंसिक लिए Ne = NH = Ni ए भी Ni मल्टीप्लाई होके Ni स्क्वायर हो गया सो लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है एक्सट्रिंसिक दे लिए हुण इहनूं आपां अप्लाई करते हैं सानू गिवन है Ne फाइनल ए एक्सट्रिंसिक दे लिए जदों दी डोपिंग कर दी गई है हुण उस केस दे विच असीं इहनूं अप्लाई करते हैं Ne कितना है 8 × 10⁻12 NH फाइनल असीं कैलकुलेट करना है ते Ni स्क्वायर Ni की है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ते इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है Ni = NH की है 6 × 10⁻8 6 × 10⁻8 द होल स्क्वायर इत्थों सानू होल्स की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी 6 × 10⁻8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 × 10⁻12 4.5 × 10⁻4 पर मीटर क्यूब ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ है एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ पहले 6 × 10⁻8 सी हुण जो N टाइप सैमीकंडक्टर बन गया तो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन वही नहीं रहेगी जो इंट्रिंसिक दे केस सी ये होल्स की कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी तो इलैक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी हुण क्वेश्चन है अ जर्मेनियम स्पेसिमेन इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इज 10⁻21 per meter cube given that the intrinsic concentration of electron hole pairs is 10⁻19 per meter cube find the concentration of electrons in this specimen जर्मेनियम एक सैमीकंडक्टर है और गिवन है कि जर्मेनियम नू एल्यूमीनियम नाल डोप किया गया एल्यूमीनियम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है तो उन्होंने पी टाइप सैमीकंडक्टर बना देगा कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्टर एटम्स की एक्सेप्टर एटम एल्यूमीनियम नहीं किया गया है एक्सेप्टर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻21 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स here 10⁻21 एक गिवन है और की चीज गिवन है कि इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स इज दिस इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन तो मतलब है कि जे जर्मेनियम नू एल्यूमीनियम नाल डोप ना किया गया हुंदा तो फिर उहदे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स होने सी ये गिवन है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻19 पर मीटर क्यूब सानू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स गिवन है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन गिवन है फाइंड की करना है
ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਸੀਮਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਡੋਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ NeNH is equal to Ni square। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P टाइप सैंपल ਦੇ लिए अप्लाई करेंगे। P टाइप सैंपल क्यों? क्योंकि एलुमिनियम जो है जर्मेनियम ਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਮੇਨੀਅਮ P टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। NH ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ Ni ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Ni ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 10⁻19 ਹੈ। NH ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ P टाइप ਤੇ N टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ P टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ concentration of holes is greater than concentration of electrons and concentration of holes is approximately equal to the concentration of acceptor atoms। क्योंकि हर acceptor atom एक hole contribute करता है तो almost holes ਦੀ ਜਿਹੜੀ concentration ਹੈ ਉਹ acceptor atoms ਦੇ equal ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So जो NH है वो की होएगा Na ਦੇ equal। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ Ne ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Ni square upon NH। Ni ਕੀ ਹੈ 10⁻19 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ NH ਕੀ ਹੈ 10⁻21 10⁻17। सो ਇਹ ਹੈ concentration of इलैक्ट्रॉन्स। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ P टाइप ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ concentration of holes ਹੈ 10⁻21 ਤੇ concentration of electrons ਹੈ 10⁻17। holes ਦੀ concentration electrons ਦੀ concentration ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਦੋਂ ਪਾਤਾ ਜਰਮੇਨੀਅਮ P टाइप हो गया ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।